Do you have the bhajan lyrics? Tere haath mein hai jeevan. Just yeah. Okay, we'll have to mute everyone from here. How do you mute everyone from here? You'll be able to do it? Okay, perfect. Hari Om everyone. Today's satsang will be on thoughts. आज का सत्संग ख्यालों के ऊपर रहेगा. And it is on being aware of your mind. Being aware of your mind. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद. पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल. यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब. पर गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. I think when we are singing these bhajans, what are we singing? These are lines written by the enlightened master. So it's so beautifully he is saying, it is in your hands to make your life. It is in your hands to make your life. Don't waste your life in just running behind money. Don't waste your life in just mute all. Yeah. Okay. Yeah, just mute all, na? It's already muted. Okay. So here the saint, the enlightened saint is telling us, it is in your hands, take responsibility, be aware. It is in your hands to make your life. Don't simply follow what the society pattern has been. There has been a very a failed pattern that, you know, history has proven it. Even the present time is proving it. Right? There's been a failed pattern. So यहाँ दादा कह रहे हैं, तेरे हाथ में है जीवन बनाना. It is in your hands. कल का नाम है तेरा काल. यही है आज, यही है अब. Means the past is a cancelled check. What you really have, you cannot do anything about your past. Can you erase it? Can you change it? You can't do anything about the past. But what you have right now in your hands is this present moment. And the best way to live the moment is by being aware. Because in awareness, there are no problems. If you're feeling hot, you can on the AC. Huh? Over here, the Guru says, what you have, your
capital right now. यही है आज और यही है. Everything is in the now. Here, now and here. So that awareness should be there. Then the song says, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे. क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे. हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. Here the enlightened master tells us, क्यों सोचे तू कल की रे. Why do you think, why do you go on thinking and worrying of tomorrow when you don't know what is going to happen? Every breath of yours is precious and valuable. Why is it precious and valuable? So for you to know that you are peace and love, for you to recognize the peace and love that is within. ये मनुष्य जन्म अनमोल क्यों है? संत बार बार कहता है, तेरा जीवन जो है ये एक तोहफा है, प्रभु का कृपा है, और ये मनुष्य जन्म हमको मिला है पहचानने के लिए, टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम द इटर्नल सोल. सी, आज कितना सफरिंग है पूरा दुनिया में. किसी का कोई चला जाता है तो कैसा लगता है? हाउ वी फील व्हेन वी लूज समवन. But you know what? We feel out of ignorance because we don't know what is the reality, what is the truth. If we knew the truth, we would never feel sad. अगर सच का पता चले कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु केवल एक दरवाजा है. आत्मा, the soul, the spirit is eternal. So the awareness, what जो enlightened masters कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो अजर अमर सच्चित आनंद है. So here they're saying, you don't know what is going to happen in the future, then why do you worry? दुनिया ना बदले बदल जाए हम, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद. So don't try to change the world. बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आते हैं क्योंकि कहते हैं कि मेरे इसके वजह से, उसके वजह से, और सोसाइटी के वजह से, शब्दों के वजह से. तो जब ऐसा हमारा स्थिति होता है कि हम डिपेंडेंट है बाहर से, सो व्हेन आवर कंडीशन इज लाइक दैट कि हमारा जो शांति है वो कंडीशनल है. कंडीशनल शांति मतलब अगर बाहर कुछ होता है. Yeah. I have to join from here because everyone No was worries. able to mute. Good, at least I can take a break, and this mic is very annoying. Yeah, and everyone was able to do it because the rights are in that phone. Okay, oh my god, we're live here also, so it's okay. So what we need to do, I think, shun this away. We don't need it. Okay, just turn this off. Okay, fine. Okay, so can you just unmute from here so we can continue, huh? Yeah, just दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद. पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. So here the saint tells us, I like Mahatma Gandhi's saying also, if you want to see the change, be the change. तो यहाँ गुरु कह रहा है, the enlightened one is telling us, when we focus on trying to change the world, it's never going to happen. In fact, we will always be in disturbance. अशांति में रहेंगे, शांति में नहीं, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं. We cannot change the world, but what can we change? We can change ourselves. We can recognize, we can make whatever change we wish to from inside. We can let go of the outside bothering us. When we say, जब हम कहते हैं इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, we are allowing it. हम ही allow कर रहे हैं, हम उसको permission दे रहे हैं. So that's where we have to be aware
that it is our choice. ये हमारे हाथ में है. It is in our hands. So we have to take back the control. अभी क्या हो रहा है? हमने कंट्रोल किसको दिया है? कंट्रोल भार को दिया है, मन को दिया है. और मन में क्या है? इग्नोरेंस है, अज्ञान है. तो being aware means taking control, recognizing that I am responsible, that it's in my control. मेरे ही हाथ में है. Because today who can say no to the mind? You only. You have to awareness. When we are aware, we can see the mind. Then consciously we can make choice. सुजागी में हम अपना कर्म कर सकते हैं. सुजागी में हम बोल सकते हैं. That's the difference between being blind and being awake. When the master has says awaken, awaken, it only means be aware of your mind. Take responsibility of the self. Take charge. As you sow, so shall you reap. See, the enlightened masters have told us, whatever action you do, you're going to face it. You're going to have to pay for it. It's going to be, that's the way God has designed the world. So jo hum karam karenge, that is only going to happen. And the last paragraph is so beautiful when the enlightened master says, Atma to hai sada ajar amar. Atma to hai sada ajar amar. जीना मरना इस देह का धर्म. जीना मरना इस देह का धर्म. सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना. हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. So here the master says in the end, Atma to hai sada ajar amar. So from day one, when you come in contact with the enlightened one, they tell you to observe, to see observe from within and recognize, finally recognize who you are and that you are not your mind. And who you are is that eternal presence, the witness. They've given it different names. अलग अलग नाम दिया है. हमारे स्वरूप को अलग अलग नाम दिया है. जैसे कि देख से आत्मा, awareness, you are love. These are all different names of the very same eternal spirit. These are all the, like how you can say water. You can say it's wavy, it's cool. You can give it many, it's transparent. So many different names for the same. So likewise for Atma also, for that eternal presence. So over here the master is saying, Atma to hai sada ajar amar. Who you are, once you recognize, you will know that no death can touch me. No birth, no death. Who am I? That has to be recognized by you from within. And it is from the beginning of creation, this body that is born has to go back. So it's made of the 5 elements, it goes back into the 5 elements. So there is no such thing as any body, this body, physical body, being permanent. Therefore they say what is permanent, that is the truth. What is temporary is not the truth. So this body that we are seeing, this is all passing. No? So that's a beautiful bhajan. So जब हम भजन गा रहे हैं, it's so nice कि भाई हमको समझ में आए भजन में क्या है, what are we singing. So these are all words of awareness. Now we will have a beautiful Vani spoken by the enlightened master. Muskan will read it in Hindi and we'll translate it as well. हरिओम. भूल क्यों होती है जो वचन पर नहीं चलते. वाणी में है, अपना काम बनाओ, तुम्हारे अंदर खजाना है, पर तुम कंजूस हो. उदार चित बनो, स्वयं ऊंचा रखो, जितना हो सके मौन रहो. निष्काम कर्म नहीं है तो नरक का भागी बन जाओगे. तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है तो तुम्हारा मन नहीं चले. जिसको ज्ञान सुनाता है, तुम पानी के ग्लास की इच्छा भी नहीं करो उससे. Can you repeat again and explain as well? Yeah. अपना काम बनाओ,
तुम्हारे अंदर खजाना है, पर तुम कंजूस हो। उदार चित बनो, स्वयं ऊंचा रखो, जितना हो सके मौन रहो। निष्काम कर्म नहीं है तो नर्क का भागी बन जाएगा। तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है तो तुम्हारा मन नहीं चले। जिसको ज्ञान सुनाता है उससे तुम पानी के ग्लास की इच्छा भी नहीं तो वो कर्म निष्काम नहीं है। Understood. गंगा में रोज नहाते हैं, तुम्हारी लिंग क्यों नहीं जुड़ती है? मना सत्संग में रोज आते हैं, फिर भी इतना सवाल पूछते हैं। अंदर तुम्हारे माया का गटर भरा पड़ा है। गंगा में रोज नहाते हैं, तुम्हारी लिंग क्यों नहीं जुड़ती है? मना सत्संग में रोज आते हैं, फिर भी इतना सवाल पूछते हैं, पर अंदर माया का गटर भरा पड़ा है। इंसान की उन्नति अवनति का कारण उसके विचार ही है। उन्नति माने ऊपर और नीचे, अवनति विचार अंदर आते हैं। बुरे विचार बीज रूप में अंदर में आ जाते हैं। इसकी जड़ जमीन में है पर फल ऊपर है। जैसे पेड़ का जड़ जमीन में रहता है पर फल ऊपर आते हैं, उसी तरह हमारा विचार भी बीज अंदर आ गया तो बुरे विचार बीज रूप में अंदर आ जाते हैं। मनुष्य का तुलना पेड़ की जड़ से की जाती है। अगर हम विचारों को विद्या, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान से पक्का करते हैं तो मनुष्य जीवन का फल अच्छा निकलता है। अगर हम विचारों को विद्या, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान से पक्का करते हैं तो मनुष्य जीवन का फल अच्छा निकलता है। बुरा ख्याल आएगा तो बुरे ख्याल का नतीजा आएगा। मन एक कल्प वृक्ष है। अभी एक दृष्टांत बताया है। एक दिन बहुत गर्मी थी। एक मुसाफिर पेड़ की छाया में आराम लेने को बैठा। उसको विचार आया, ऐसी गर्मी में अगर ठंडा जल पीने को मिल जाए तो ऐसा विचार आते ही जल का लोटा आ गया। जल पिया उसने। फिर विचार आया भोजन का, तो भोजन भी आ गया। तो मुसाफिर जिस वृक्ष के नीचे बैठा था तो वो कल्प वृक्ष था। सोचा जो मैं ख्याल करता हूँ वो आ जाता है। अगर उल्टा ख्याल आ गया दिमाग में, मेरी हालत क्या होगी? वो खुद ही सोच रहा है कि अगर उल्टा ख्याल आ गया मेरे दिमाग में तो मेरी हालत क्या होगी। अगर जिन भूत माना भूत का विचार आ गया तो उसका विचार आते ही सामने जिन भूत आ गया। मुसाफिर डर गया। फिर भी सोच विचार कर रहा था, दोस्त तुम चले जाओ। ये ख्याल आते ही जिन भूत भी चला गया। फिर अच्छे विचार करने लगा कि ये फल मिल जाए तो ये खाऊं, तो फल भी आ गया। फिर उसने शेर का ख्याल किया। फिर तो बहुत घबरा गया और डर में ही प्राण निकल गए। जैसे मैं विचार करूंगा वैसे कर्म भी करूंगा। Yeah, so you understood it? Your thoughts are very very important. हमारे जो विचार है, what we are thinking from within. So we have to be aware of this. अगर भीतर में सुजागी नहीं है और हम blindly कर्म करते रहेंगे, the story is just trying to reflect that हर एक को भीतर में वो पावर है कि हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे इच्छा है, जो भी हमारा ख्यालों है, विचारे, whatever we are thinking from within, that is what we are going to do. Now today if I hold something within me, it is definitely going to unfold. It is going to happen. Now if I want to, देखो अगर मैं सोचता रहता हूँ मुझे कुछ गलत काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मिलना है, so if I say I want to get this, if I have that inside of me, मुझे इस प्राप्त करना है, मुझे ये करना है, इसलिए कहते हैं संभालो तुम्हारे भीतर में क्या चल रहा है। What
what is happening within you, you must be aware of, because it is a cycle, एक चेन है. पहले ख्याल विचार उठता है, फिर वो शब्दों के रूप में आता है, फिर एक्शन हो जाता है. What Dada J.P. Vaswani says, and all saints have said, beware of your thoughts because it leads to words, words lead to action, and negative action, when it is repeated, it leads into a habit. Sum total of your habits is your character, and the character you have is your destiny. So therefore हमको संभालना है कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है. जैसे तुम्हारे भीतर वैसे ही तुम्हारा सृष्टि भी बनेगा. अभी देखो, द डिग्री ऑफ योर हैप्पीनेस, द डिग्री ऑफ माई हैप्पीनेस, सबका डिग्री अलग अलग है. और जो शांति में, जो अपने पे कृपा करता है, हु इज सुजाग, हु इज अवेयर, और इसको मालूम है कि भाई मुझे संभालना है, सीयर होके बैठना है, आई शुड नॉट एंटेंगल विद द माइंड. जब उठता है कुछ तो वहां पर ही स्टॉप करूं और मैं अपने शांति में रहूं. जो शांति में रहेगा, देयर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस और देयर डिग्री ऑफ जॉय इज डिफरेंट. नहीं तो दुनिया में आप देखिएगा, कोई कभी सुखी, कोई कभी दुखी, कोई एकदम दुखी, कोई एकदम डिप्रेशन में. तो कैसे फिर हम को परम आनंद मिले, कैसे हम वो स्थिति में, हाउ कैन वी बी हैप्पी ऑल द टाइम. तो यहाँ गुरु कहता है, तुम अपने ख्यालों को सिर्फ देखो. वी हैव सेड इन द सत्संग मेनी टाइम्स, सी योर थॉट्स, सी योर माइंड, डोंट बी यूज्ड बाय योर mind. Don't let your energy totally go into your mind and you forget yourself and you become the mind, you become the thought, you think it is real. You understand? तो देखो, जो जिनके हृदय में इतने सारे इमोशंस है, मन में इतने सारे इमोशंस लगता है, sorrow, fear, dup, scared, they are really frightened, they live afraid, palpitations, panic attacks, stress. This is all the mind play. क्योंकि शांति, the peace that is there inside, वो उनके सारा एनर्जी रोल में अपने आप को मन समझ के बैठा है. So over here the Guru is saying, beware of your thoughts. So this is an example. ऐसा नहीं है कि I think of a lion will come right now. I think he's going to eat me, he's going to eat me. They're giving you an example that you have the power. You have the power to choose, you are writing your own destiny. तेरे हाथ में है जीवन बनाना. It's just showing that how you're making it your reality. Yes, you're making it a reality. Share might have come on water, but absolutely right. Absolutely. Came. Yes, the fear emotion came yes, from yes, that thought. Yes. So it's good to be aware that thoughts lead to your emotions also. Your belief system creates your emotion. जैसा मैं विचार करूंगा वैसा कर्म भी करूंगा. सो पहले बोलते विचार बहुत पावरफुल है, अभी बोल रहे जैसा मैं विचार करूंगा वैसा मैं कर्म भी करूंगा. ख्याल ही मनुष्य में मूल शक्ति है. मना थॉट्स हमारे पावर है. ख्याल है पारे जैसे, एक जगह ठहर नहीं सकता है. ख्याल एक जगह ठहर नहीं सकता है और हिलाने से ख्याल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है. टुकड़ा टुकड़ा अपने रूप को धारण करते हैं. इसलिए मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए. माना मल्टीपल थॉट्स आते हैं और थॉट्स हमारा मन बिखार देते हैं. कोई एक ख्याल किधर लेके जाएगा, एक ख्याल किधर लेके जाएगा. तो मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए है. बुरे विचार आए तो उसी टाइम निकाल दो और अच्छे विचारों को मजबूत करना चाहिए. अगर हमारा ख्याल बुरा होगा, विचारों में बड़ी शक्ति है. इंसान का विचार इंसान का निर्माण करता है. मीन्स योर थॉट्स क्रिएट यू. ब्यूटीफुल. सो यू सी, अभी डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? जैसे आपने कहा विचारों में, ख्यालों में, थॉट्स में इतना पावर है. टुडे इफ यू मुस्कान, अगर आपने कुछ सोचा और अपने वो आपके लिए रियलिटी, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, और सब कह रहे तुझे, तेरा ही ख्याल है, तू ही क्रिएट कर रहा है. जो पास्ट में हुआ इट इज गॉन. व्हाई आर यू स्टिल कैरिंग इट विथ यू?
You are here now for a purpose. You have to connect with God. You have to connect with the peace, the beauty, the love that is within you. The most available fragrance, which is God, the Creator. So there should be some connection. लेकिन मन में इतना देखो पावर है, जैसे आपने कहा ख्यालों में, कि वो विश्वास हमारे भीतर में जब ख्यालों में चले जाता है, तो कौन दे रहा है सपोर्ट थॉट को, कौन पावर देता है थॉट्स को? यू आर ओनली गिविंग. दैट इज व्हाई इफ यू चेंज फ्रॉम विद इन, इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम विद इन, थॉट्स हैव नो पावर ओवर यू. थॉट्स हैव नो पावर ओवर यू. ख्यालों, how do you say that in Hindi? Thoughts have no power over you if you are aware. If you know you are the master of your mind. Who has more power? किसको ज्यादा पावर है, लैंडलॉर्ड को या टेनेंट को? लैंडलॉर्ड ओनर है, टेनेंट आके जाएगा. ऐसे भी ख्याल आके जाता है. यू हैव द पावर टू चूज. यहां पर लिखा है वाणी में, तुम चूज करो. पॉजिटिव विचारों को तुम और मजबूत बनाओ. बी द चूजर ऑफ योर थॉट्स एंड हैव इतना पावर कि लेट गो. इतना रिकॉग्निशन, इतना सुजागी होना चाहिए अंदर में, ये मुझे नहीं रखना है भीतर में, ये फॉल्स है. दिस इज माई माइंड, दिस इज माई सेल्फ बिलीफ. आई कैन डिटैच फ्रॉम इट, आई कैन लेट गो, लेट गो, लेट गो एंड ब्री इन द प्रेजेंट मोमेंट. अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है. लेकिन मन में अगर आप देखिएगा तो वो पास्ट का ये करना, वो करना, इमोशन में, फीलिंग में. नाउ ऑल्सो आई वॉज वॉकिंग, अभी मैं चल रहा था और ऐसे ही माइंड में कुछ आया, मैं मन के अंदर चला गया और ऐसा ऐसा हाथ घुमाने लगा और अपने आप बात करने लगा. कोई मेरा दोस्त मुझे देखा गाड़ी में और हाय बोल रहा था मुझे. then I came back, then I just again attention came in the moment here. And then I recognized him. फिर चलते चलते सोचने लगा, he must be thinking I'm mad because I was in my mind, you know, एक ख्याल आया, I believed in it. देखो मैं कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ ख्याल को, कैसे हम रख सकते, उसको लाइफ देते हैं. और अगर हमने छोड़ा तो पावर नहीं है, कोई ख्याल हमको अफेक्ट नहीं कर सकता है. That is why they say once you are aware, no thought has the power to disturb you. No thought has the power to disturb you. And I like how it's saying that how our karma will be from our thought. Karma is definitely the whole game of karma is action, and how are actions created based on your thoughts. Now, important question. I don't know if it will come. अगर आएगा वाणी में पढ़ के देखना कि भाई ख्यालों को हम कैसे फिर बदल सकते हैं. It's answered to some extent. Okay. कि जब भी ख्याल आते हैं तो वो बता रहे हैं कि इसलिए मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए. एवरी टाइम मन को एक करना है. बुरे विचार आए तो उसी टाइम निकाल दो और अच्छे विचारों को मजबूत करना चाहिए. Alright. अगर हमारा ख्याल बुरा होगा, विचारों में बड़ी शक्ति है. इंसान का विचार इंसान का निर्माण करते हैं या विनाश भी करते हैं. इंसान का विचार इंसान का निर्माण करते हैं या विनाश करते हैं. मतलब बना भी सकते हैं इंसान को और इंसान का पतन भी कर सकते हैं. विचार तो एक कल्प वृक्ष है जिससे सब कुछ प्राप्त होता है. विचार तो एक कल्प वृक्ष है जिससे सब कुछ प्राप्त होता है. लाइक हाउ यू सेड, मैं आज इमेजिन करूँ आई एम अ मिलियनेयर. In your thoughts, you have already become a millionaire. You can imagine yourself to be a millionaire. So that's how it's a kalpvriksh. I just have a thought, I'm a millionaire. Yeah, take a small example. I am happy. Who made you happy? My thought. Whatever I wanted, I asked that thought, my mind. It made it a reality for me. Yeah. Now, see, the essence is कि भाई happiness should not lie in the thought. No, happiness is an example. But I'm saying whatever, whether you say money. Yeah. I go to my mind and say I'm a billionaire. In my thought, I am a billionaire, so you can imagine anything. You ask your mind, I am a millionaire. It will show you are a billionaire. No, the again, what you need to do is, now suppose there is a feeling of कुछ insecure feeling है, कुछ vacuum खाली लगता है, desire being unfulfilled. You can easily recognize that, erase that, let go of that,
and come back and be in your peace. So today, if you talk about success, many people have, बहुत सारे लोग सक्सेस को क्या कहेंगे? जो अमीर है, जो बिलियनर है, मिलियनर है, जिसके पास बहुत पैसे है, वो सक्सेस. पर मेरे लिए सक्सेस वो नहीं है. Like you imagine the worst. Human nature is I am sad. हाँ. So what you will imagine is मेरा life बहुत खराब है. Yeah, Whatever yeah. you thought, you made it your reality. Reality, yes, like yes, that. yes. You That create your own reality from inside. Now coming back to success, जो अपने आप को जानता है, जो अपने मन का गुलाम नहीं है, who's the mind master, who's in his own peace, that is true success. That is because वो success फिर हमेशा तेरे पास रहेगा. बाकी दुनिया में जो हम सोचते हैं सक्सेस, चीजों को इकट्ठा करना, पैसा मिलना, collection of materialistic things, that is not going to remain. Changing the definition of success. Yeah, that is going to not remain. It will go on this thing. No, this is true success. This is true success, is how your inner state is. Are you in peace with yourself? Are you at peace? That is why they say Santosh Dhan. Santosh Dhan. Santosh means contentment. You see? So, if you can feel the love, if you are in peace, you are not disturbed by the happenings of life, the passing, that I feel as success. So is that a belief? Is that a belief system? Yeah, you made your life. No, that is not a belief system. It's not I feel a belief, but it will start with the thought. Like how you said, thought, your action. yes. You made it your reality. Your action, when your actions are like that, your thought is like that. That will make you believe that this is my reality. Yeah, that will make you know. That will make you know. And now you see what I think also is come to a deeper level. What we can discuss, and you can openly tell me what you feel. Having no belief system and just knowing in your own heart that, you see, peace is not just a word, it is a feeling, it is a knowing, it is a state. Peace is a state. Today, you see, when you come in action, when you come in want, when you come in karma, there is always fluctuation, mental fluctuation. भीतर में हमारा हलचल होता है. शांति माना जहां मन नहीं, माना मुझे ना कुछ करना है. I am not burdened by the role, no thought, no this thing, just totally relaxed, where I have nothing to do, where there is no pressure, no me, no I. Okay, this is so this is what the Vani is pointing to. Who am I? Who are you? Knowing that peace, you play your role, knowing that peace, being in your peace. So whenever there is a fluctuation, when a storm comes in the ocean या sea में, जब कोई तूफान आता है, does it last forever? It doesn't. तूफान आके चले जाता, फिर वापस. So likewise also हमारे जीवन में, it doesn't mean that हलचल नहीं होगा. One who knows is established in his peace. Sometimes the mind will go up and down, but at the end of it, that awareness is there. This has risen, it will pass. For I feel in my heart that this is true success. जो अमीर है, जो पैसा है, जो बिजनेसमैन है, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, वो सक्सेस नहीं है. The goal of life is peace of mind, not money. As the fish finds peace in water, not in honey. So true success, you don't have to call it success also. We are just giving it a label कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारा अंदर में विचार क्या है, इसके बारे में ये विचार है हमारा कि पैसा सक्सेस नहीं है, शांति सक्सेस है. You're just giving, और शांति तुम ही हो. That's what the master is saying. You catch what I'm trying to say? Yeah. Huh? Yeah, sure. I'll do it. विचार इंसान को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं. विचार पर हमारा दुख सुख का मजा है. विचार ही दुखी करता है, विचार ही सुखी करता है. विचार पर हमको स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है. विचार से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है. आत्मा का ज्ञान सब इल्मों की कुंजी है. शरीर से भी जो आत्मिक रोग है, वो अनेक तकलीफों में भी आ जाता है.
सच तो ये है, आत्मिक रोग पहचानने वाले बहुत थोड़े हैं, जैसे हमारा सदगुरु भगवान दादा भगवान है। शारीरिक रोग देखने में आता है, बाहर से देखने में भी आता है। डॉक्टर उसको उसके होने का कारण भी बता देता है। कहने का मतलब कि बाहर शरीर को तकलीफ होता है तो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पॉइंट आउट कर देगा, बट मन का, आत्मा का डॉक्टर कौन है? Sadguru hai, yes. एंड The enlightened one, no, they know, because you see, it's true also, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, डर है, ख्याल है, तो फियर है, तो वो आपको मौत, माना ये शरीर का, यू कैन इवन डाई। माना जिसको कोविड था, बहुत सारे को, जिसके हृदय में भय था, मन में भय था, वो उल्टा दे कुड नॉट सर्वाइव। और कारण फियर। सो फियर, तो एक तो कोरोना आया और फियर ने डबल उनको परेशान किया। और ये हुआ था, हमारा एक पार्टनर साउथ अफ्रीका में, उसका शरीर शांत हो गया। 55 years old man, that when we got on conference with the doctor said that he cannot stop thinking. He's so worried. He's got so much fear. फिर उनको कोमा में डाला गया ताकि thinking that he will be relaxed, he can recover. Then all his organs started failing. So what killed him, if you ask me, it is fear. That's why Swami Vivekananda says, fear is death. Fear is death. और डर देखो, इसलिए सुजागी में आना, क्योंकि डर कहां पर क्यों आता है? Why do we fear? What is the cause? It also, what Muji says, संत कहता है, the enlightened person, fear is the bluff of the mind. Fear is the bluff of the mind. मेरा कुछ चला जाएगा, मेरा नुकसान होगा, ये नहीं रहेगा मेरे पास। तो ये फिर देखो एक ख्याल है, एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरा, और संत कबीर ने क्या कहा, देखो निडर होने का मतलब क्या है? टू बी फियरलेस, व्हेन ही सेज मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। Nothing is mine. Yesterday also, day before in Jai Baba's birthday, the children put one bachan upstairs. It says, when everything comes from God and belongs to God, then why does the I have to claim? So if we have that attitude कि सब तेरा, तो डर भी नहीं रहेगा। अगर हमारा, देखो, एक माँ डरेगी बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, एक बिजनेसमैन डरता है धन के लिए, बिजनेस के लिए, तो सब मैं मेरे के दुनिया में। एंड व्हाट रामना महर्षि सेज अबाउट दिस आई, इट्स अ डीप मदर आई थॉट that I am the body, I am the mind. From this all thoughts arise. There is some claim. So godliness is no claim. Do you ever hear God saying I, me or mine? I can't hear anything like, it's just there. Then man, he comes, then we say I, me and mine, because your I is different from my I. If I ask you who are you and I ask myself who am I, you'll look at this body and form, and I'll look at this body, and we'll already think we are separate. So this identification, ये जो पहचान है, that's why they say पहचान सके तो पहचान कि या है ही भगवान। Where were you? Over here, the doctor, no? भोजन का समय छोड़ेंगे तो भजन में मजा आएगा। कितनी भी निंदा हो पर अपने मन पर असर मत होने दो। कितनी भी निंदा हो पर अपने मन पर असर मत होने दो। निंदा सुनना भी पाप है। वाओ। सब में शुद्ध भाव और सद्भाव रखो। सब में शुद्ध भाव और सद्भाव रखो। आचार विचार शुद्ध रखना। So beautiful here when they say ninda mein. Today if anybody tells you something, word, you are a bad person, you are a fool, you're crazy, abusive language, घर में use करते हैं. How many people have got it deep, gone into depression because of words?
So over here, the master is saying, don't let any word affect your inner peace. You see, the mind's nature kya hai? What is the nature of the mind? It will, oh, he has abused me. Oh, he has told me this. How can they think I am like this? Whereas the master is telling you, this is the mind, this is not you. Nobody, no word can touch you. So that separation between you and the mind, and you knowing that this is false, the mind's voice is false. Therefore, let the words be. You see, don't even take them within. It cannot touch you. Somebody abused the enlightened one once, the master, and they came and they told, जय बाबा आपको मालूम है किसी ने आपके लिए ये बोला है. जय बाबा said, अच्छा, मेरे को कोई शब्द छुआ ही नहीं, मेरे को कुछ आया ही नहीं. So their word is their word. Nothing can. So look at that way of living, so beautiful. So that we can incorporate in our lives. वो हमारे जीवन में होना चाहिए. आचार विचार शुद्ध रखना चाहिए. इस वाणी का दुरुपयोग न करो. नाप तोल कर वाणी को बोलना चाहिए. सर्व में सर्व वस्तु में ईश्वर देखोगे तो वासना का नाश होगा. हर में है नूर खुदा का. जब ये संसार नाशवंत शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरे का शरीर कैसे अपना समझते हैं. I'll read it again. इस वाणी का दुरुपयोग न करो. नाप तोल कर वाणी को बोलना चाहिए. सर्व में सर्व वस्तु में ईश्वर देखोगे तो वासना का नाश होगा. हर में है नूर खुदा का. जब ये संसार नाशवंत शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरों का शरीर कैसे अपना समझते हैं. यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म 4 प्रकार के होते हैं. जैसे पूर्व जन्म का कर्म पहला, दूसरा इसी जन्म का कर्म, तीसरा अभी जो कर्म कर रहे हैं, और चौथा आगे जो कर्म करेंगे. आगे जो कर्म करेंगे वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं है क्योंकि वो तो मोक्ष के लिए है. उसका पुनर्जन्म है ही नहीं. बता रहे हैं कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म 4 प्रकार के हैं. एक जो पूर्व जन्म का कर्म है, दूसरा इसी जन्म का कर्म, तीसरा अभी जो कर्म हम कर रहे हैं, और चौथा आगे जो कर्म करेंगे. तो बोल रहे आगे जो कर्म है वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं है क्योंकि वो तो मोक्ष के लिए है जो उसका पुनर्जन्म है ही नहीं. तो हमारे लिए भगवान ने 3 ही कर्म बताए हैं. जो पहले हो गया, मतलब जो पहला बोला था जो पूर्व जन्म का कर्म है, तो जो पहले हो गया उन पर कब्जा नहीं कर सकते. जो अभी हो गया, जो इस जन्म में भी जो हो गया है उसमें भी वो कह रहे हैं जो अभी हो गया सो वो भी हो गया. ये जरूरी नहीं कि हम अभी कर्म करें और अभी फल मिले. भगवान बता रहे हैं थोड़े टाइम के लिए कर्म इकट्ठे होते हैं. एक है प्रारब्ध और वो मिट सकता है, और दूसरा है भावी अटल. प्रारब्ध अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कार से बदल सकते हैं. प्रारब्ध अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कार से बदल सकते हैं. पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध की प्राप्ति होती है. प्रारब्ध और पुरुषार्थ इकट्ठा काम करते हैं. प्रारब्ध और पुरुषार्थ इकट्ठा काम करते हैं. जो कर्म हमने कर्म नहीं किए वो पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध बन सकती है. पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी प्रबल है, मतलब पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी बड़ी है. जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध बनेगी. कुकर्म प्रारब्ध को बिगाड़ते हैं, सुकर्म प्रारब्ध को बनाते हैं. प्रेम का दान करो. गुरु का मतलब है ज्ञान. तूने जल्दी जल्दी करने में उम्र गवा दी. तुझे तेरे लक्ष्य का पता नहीं है. ज्ञान का मतलब है मौन.
बात करना बोझ होता है। सामने ज्ञान सुनने से बात करोगे, लेन देन करोगे, वो टेप से भी मजा नहीं आएगा। अज्ञानी को पुस्तक से मजा आता है, मतलब वन वे कॉन्वर्जेशन। वो आत्म रस नहीं हुआ, अंदर विक्षेप रह जाएगा। सामने सुनेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। अभूल आत्मा में आएगा। ज्ञानी शास्त्र न लिखता है न पढ़ता है, उसकी बुद्धि जड़ होती है। आत्मा सावधानी में रहना है। कोई शंका आए तो बात करो ना। दिस इज दे आर जस्ट टॉकिंग हाउ यू शुड बी, कि ज्ञानी को मौन रहना होता है। कोई शंका आए तो बात करो। तेरे अंदर क्या है उसको बताकर खत्म करो। हम वाणी बोलते हैं तेरे झूठ निकालने के लिए। झूठ क्या है? दे अध्यास। सत्संग में अंदर की माया निकलती है। तुम अंदर की माया निकाल कर दिखाओ। ज्ञानी अज्ञानी जैसा व्यवहार करे तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञानी अगर अज्ञानी जैसा व्यवहार करे तो ज्ञान क्या हुआ? आत्मिक प्रेम जब होता है तब होता है जब आत्मा ही देखे, शरीर नहीं देखते। It's too long, directly. It's fine. Okay, I think lovely. If anybody has any questions, अगर किसी को भी कोई सवाल हो आज के on thoughts, किसी को भी कोई doubts हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्लीज ऑन योर वीडियो और वी कैन डिस्कस। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, विचारों मन के ऊपर, अपना शांति या किसी के ऊपर, इफ एनीबडी इज फीलिंग, एनीबडी इज इन डिप्रेशन, एनीबडी इज डिस्टर्ब बाय देयर माइंड, अगर कोई भी सवाल हो, क्लियर करना चाहते हो, you all want to understand anything about the Vani that Muskan shared, please turn on your video. Unmute us. How do you unmute us? Let's sing that Sujagi Kam and Deepanu. Ronit? Ronit, just end this, no? We'll end the Facebook Live. Yeah. Yeah, Hari Om. So